So in the previous session, we have seen about this insurance, okay? Insurance data linear regression. And what was the problem domain of this? That you have insurance data with you. Insurance data in the sense you need to find it out, means who will going to purchase the insurance, okay? uh, how much insurance based on their insurance selling, right? The data set was something like this: X and Y column, where X is a number of insurance and Y is earning or commission that LIC agent or insurance agent they get it. So you have to predict it, like how if I sell in this number of the insurance, how much I get it. So this was the problem domain, and we have seen how to upload the data, right? How to read the data. So we have already done installation and importing the library. Then we were reading this file. Let me run it parallelly with you. So this was the step for pandas and numpy for reading the CSV file and converting into the vector. Why do we use numpy? Converting each row of the data set into vector. This you note down, or you just remember in your mind, like why do we use numpy? So that we can read each row of data set in the form of vector on array. Then if you want to upload into notebook, what you will going to write: from google.colab import files, upload file, upload. Click on this choose file, go to the path where you have kept the file. I have a file in the folder. Just let me open that folder. It will take some time to upload. See, it's done completely. Now, in order to run the file, what we were using, pd.read CSV. Why we are using read CSV? Because this is our CSV data, right? So when you are going to run this, it will going to show like this. You can make changes also, as I had said you can make it 10, 20, however it is. I think maximum 50 it will be allow in a cell. More than 50 it won't allow. It will show you with gap. If I convert it into 70 and run it, it will see the dot will come by, because it won't be accommodate on this cell. So based on that, you can make changes and decide. And df.describe function, what it will going to do, it will going to show you statistical data. It will going to show you statistic of your data set, means how many number of rows. This one is your number of rows, 63 is your number of rows, mean value, standard deviation of a row, and it is varies. You can see here, this is with respect to x, this is with respect to y. So obviously the number of count will be remain same, but this means standard deviation, minimum value, 25 percentage of the data, what is the 50 percentage of data, 75% maximum value. This all will be showing by this describe function. So it shows statistic. Okay, once you are done with this, now I told you in the last class that this step is using to split your data set into train set and test set. So training set will be slightly less than 0.8, that is your, it will be something 75%, 70%, or 72, 73, but it should be less than 80% your training data. And when you do the negation, then it will be something like 100 minus, just 1 minute, okay? I got one call, 1 minute, okay?
Yeah, sorry, Arush, I got one call. No problem, sir. No problem. सो यस, आपको क्लियर हो रहा है राइट? आपको अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में नहीं आना, तो प्लीज आस्क मी, ओके? आई विल एक्सप्लेन यू मल्टीपल टाइम, बट don't keep it in yourself, right? Any line, because each and Okay, every sir. line will help you uh, to build same code in future, even when you will do your engineering, when you do your project, right? And when you work in a company. So I hope this all thing will be make your foundation, means it will make your foundation strong. तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई भी लाइन हो अगर आपको समझ में नहीं आता, प्लीज आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है? सो एज आई वाज सेइंग, this one was they will going to do negation, okay? It is like you can think it like 100 minus 80. So normally it will going to give you 20%, or maybe in the range of 20 to 25 आपका ये टेस्ट सेट होगा। और ये जो हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि ये हम लोग रैंडमली दे रहे हैं, ठीक है? बट एक और मेथड है जिसको मैं आपको next when we are going to do for other algorithm, I will going to tell you that is easy one, where but this is I feel more better, because you are every time you are changing it, right? So there will be better chance of learning here, right? So यहाँ पे once you run this, you will get 46 and 17, how it varies, right? अभी आप 63 का 80% कुछ निकालो, कितना होगा आप देख दिखाओ, सॉरी, I will going to show you, like it will be varies, right? If you find it out 63%, something 50 is coming. So if you divide it by 100, 50.40, so ये 50 से कम है, right? So it will be something like 78%, you can think it, right? So as I said you, it will be varies whenever you run multiple time, okay? Then you can plot it. Plotting is also very easy, right? And मैंने linear regression में बताया था कि देयर विल बी अ बेस्ट फिट लाइन विल बी ड्रॉ, ओके? एक्चुअली में क्या होता है, देखो, बेस्ट फिट लाइन मतलब क्या होती है कि एक ये जो रेड कलर की बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ होती है ना, इसका मतलब होता है कि ये आपका योर actual prediction. This is best fit line means your prediction that is done by your algorithm. Okay, मतलब जब आपने ये एल्गोरिदम रन किया तो एक बेस्ट फिट लाइन पॉसिबल होती है। तो ये बेस्ट फिट लाइन मतलब योर एक्चुअल प्रिडिक्शन, और ये जो ब्लू वाले जो है ना, ये योर अभी जो एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट किया है। मतलब ओके, मैं फिर से समझाता हूँ, लाइक सी how it is, means suppose this is your best fit line. This best fit line means your target variable, okay? Your best fit line means the prediction that is given in your algorithm, means your data set. अभी जैसे मैं डेटा सेट में जो तुम्हारा ये है y, ठीक है, ये क्या है, y तुम्हारा टारगेट वेरिएबल है, राइट? मीन्स हम लोग y को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम बेस्ट फिट लाइन क्या होगी, ये डेटा, और जो ब्लू वाला क्या है कि जो आपके एल्गोरिदम में ट्रेनिंग के बाद प्रिडिक्ट हुआ है। तो जो ट्रेनिंग के बाद प्रिडिक्ट होता है ना, वो कुछ इस इसमें आता है, ठीक है? मतलब ये ब्लू डॉट जो है वो आपके एल्गोरिदम ने प्रिडिक्ट किया है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है? और ये जो बेस्ट, ये जो रेड वाली जो लाइन है, ये आपके डेटा सेट में है। तो आप लोग क्या करते हो, इसमें हम फाइंड आउट करते हैं इज माई करंट प्रिडिक्शन और एक्चुअल प्रिडिक्शन, कितना डिफरेंसेस है इसमें। ओके, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल your assumption that you will going to score in 12th 95%, okay? But you score 98%, तो आप उसमें एनालाइज करोगे, मतलब कि you will going to find it out what was my actual result and my predicted result. Actual result minus predicted one, तो एक्चुअल रिजल्ट आपका कितना है, 98, और आपने प्रिडिक्ट किया था, आपने सोचा कि मे बी maybe you thought like it should come 95, आपने सोचा कि मेरा 95 आना चाहिए, बट यू गॉट 98, राइट? सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस थ्री, राइट? तो ये जो थ्री जो आया, इसको आप बोल सकते हो एरर, ठीक है? एरर मतलब यू कैन से लाइक एक्चुअल
minus predicted value will do, it will be an error. मतलब कुछ 3% का एरर आ रहा है डेटा में, मतलब जो एक्यूरेसी हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आरुष? Yes, sir. Shall I repeat once again, or like is it clear? See this, Please repeat also. yeah, ये जो रेड लाइन है that is your actual data. Okay, this is your actual data and this blue one is what prediction done by your algorithm. जब आप prediction को करते हो, ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि मेरा एल्गोरिदम कितना एक्यूरेट है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो एक्चुअल डेटा से आप आपका प्रिडिक्टेड वाला माइनस करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, उसको आप समेशन करोगे तो उसको आपको पता चलेगा कि इतना एरर है मेरे प्रिडिक्शन में, मतलब 3% का एरर है मेरे प्रिडिक्शन में। मतलब मेरा प्रिडिक्शन था कुछ 95, आई गॉट 98, और हो सकता है कि अपोजिट भी हो। सपोज मेरा प्रिडिक्शन मेरा 95% है, मैं मुझे 93 आया, तो मेरा 2% का मेरा एरर है। ठीक है, मेरे मेरे जो एजम्पशन में 2% का एरर है। तो यही होता है लीनियर रिग्रेशन में। ये जो रेड लाइन फॉर्म होती है उस वो बेस्ट फिट लाइन होती है, मतलब दैट इज योर एक्चुअल प्रिडिक्शन। और ये ब्लू वन होता है वो प्रिडिक्शन डन बाय योर करंट एल्गोरिदम। जो एक्चुअल प्रिडिक्शन क्या है, जो वाई कॉलम है आपके डेटा सेट में, ये रेड कलर की। और ब्लू वन इज व्हाट, दैट इज करंटली प्रिडिक्टेड। तो आप उसमें जब माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना एरर है, और वो एरर को समेशन करने पे आपको पता चलेगा कि कितना एरर है मेरे प्रिडिक्शन में। तो वो जैसे 3% का एरर है, आप 100 - 3 कर दो, मतलब क्या हुआ कि 97% एक्यूरेट है आपका एल्गोरिदम। ठीक है, और 3% का एरर है आपके इसमें। मतलब आप जो प्रोडिक्शन करते हो तो 97 टाइम वो करेक्ट होता है, 3% टाइम इनकरेक्ट होता है। ठीक है, सो ये होता है लीनियर रिग्रेशन का। इन दिस वे इट वर्क्स। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे हमने विजुअलाइज किया। वंस वी आर डन विद दिस विजुअलाइजेशन, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अभी हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो ट्रेन करने के लिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा से मैं एक्स और वाई वैल्यू को एक्स और वाई वेरिएबल में असाइन करूंगा। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा का एक्स और वाई वैल्यू, डॉट वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, पूरे की पूरी एक्स कॉलम की वैल्यू इस स्मॉल एक्स में असाइन कर देगा, और ये वाई वैल्यू की पूरी वैल्यू इस वाई वेरिएबल में असाइन कर देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑप्शनल पार्ट है, आप मीन फाइंड आउट करके डेटा देखना चाहते हो कि कैसे मेरा डेटा दिखता है, वेरिएंस फाइंड आउट करके आप देखना चाहते हो कि हाउ डेटाज आर सेपरेट, these are optional. Okay, this is not because I just did it so that to make you understand like how you can create a function in Python and you can find it out mean, variance, right? Last time I hope I've shown you the formula of a variance, right? So variance किस लिए use होता है, to show you how data are separated from each other. Yes, sir. So variance is used to find how data are separated from each other. अब ये हो गया। ठीक है, इसको होने के बाद अब लोग क्या करोगे, अब ये मीन, अब अपनी मीन का एक फंक्शन लिखा, वेरिएंस का फंक्शन लिखा। अब मीन एक्स और मीन वाई में आप मीन को कॉल कर रहे हो, मीन फंक्शन को कॉल करके एक्स कॉलम एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हो। कौन सा? एक्स वेरिएबल। एक्स वेरिएबल कौन सी डेटा होल्ड किया है अभी? एक्स कॉलम का ऑल डेटा। तो ये फंक्शन क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे आपके एक्स कॉलम का, और ये मीन फाइंड आउट करेंगे वाई कॉलम का। Similarly, this where x and where y, what it will going to do? It will going to find out the variance। किसका फाइंड आउट करेंगे? आपके वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है, मैंने आपको बताया था, एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। देखो, तो ये वेरिएंस में क्या है, आपका जो करंट वैल्यू माइनस मीन वैल्यू का होल स्क्वायर, टोटल सैंपल -1, उसका समेशन। ठीक है, और इसको आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसमें एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो आपको जब आप अपने डेटा सेट में देखोगे, हियर वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम, एक्स एंड मीन एक्स। तो जो वेरिएंस फंक्शन है वो एक्स
का ईच वैल्यू लेगा, उससे मीन को सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वैसे वो वेरिएंस फाइंड आउट करेगा। एक बार मीन और वेरिएंस आपका निकल गया, तो आप उसमें कोवेरियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस का भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, so covariance is what it is, it will going to um, it will going to change, means it is used to compare टू वेरिएबल, मीन्स टू कॉलम। मतलब जैसे आपके डेटा सेट में एक्स और वाई कॉलम है। एक्स क्या थी? नंबर ऑफ इंश्योरेंस सेल बाय द एजेंट, और वाई क्या है? अर्निंग, राइट? तो एक्स और वाई कितना रेलिवेंट है ईच अदर, हाउ दे आर वेरिएबल विथ ईच अदर, मीन्स अगर मैं एक्स को चेंज करता हूँ तो वाई कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं डेटा सेट को दिखाता हूँ आपको, कोवेरियंस क्या मेजर करता है कि अगर मैं एक्स को चेंज करता हूँ, मान लो 108 की जगह 109 करता हूँ, तो मेरा वाई की वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ये कौन फाइंड आउट करता है? कोवेरियंस। और वेरियंस क्या फाइंड आउट करता है कि मेरा डेटा कितना सेपरेटेड है, मतलब 108 के बाद एकदम 19 आ गया, तो मतलब देर इज अ लार्ज सेपरेशन इन द डेटा, राइट? बट 19 के बाद 13 है तो देर इज वेरी लेस सेपरेशन, बट 13 के बाद 124 आ गया तो देर इज अ वेरी लार्ज डिफरेंसेस, राइट? तो वो वेरिएंस होता है। कोवेरियंस मतलब जब आप दो कॉलम को कंपेयर कर रहे हो, कि मतलब चेंज इन अ वन वैल्यू विल गोइंग टू चेंज अदर वैल्यू। इज इट क्लियर डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस कोवेरियंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ विल गोइंग टू डू द प्रिडिक्शन। सो प्रिडिक्शन करने के लिए क्या होगा? एज आई टोल्ड यू, फॉर इक्वेशन, व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन? दिस बी नॉट बी वन एक्स, तो ये बी नॉट बी वन क्या है? ये जो बी नॉट बी वन है इज नथिंग बट द कोफिशियंट। ओके, और ये कोफिशियंट हम कैसे डिसाइड करते हैं? इट विल बी लाइक डिसाइड बाय योर एल्गोरिदम ओनली। ठीक है, ये जो बी नॉट और बी वन है, कोफिशियंट जो होता है, कोवेरियंस ऑफ दिस एक्स एंड वाई डिवाइड बाय योर वेरियंस। ओके, और बी नॉट जो है वो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये जो है ना बी नॉट बी वन, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉलम ऑन योर डेटा सेट। अगर मैं बोलूँ अब यहाँ पे दो कॉलम है, ठीक है, एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे बी नॉट और बी वन है। बट अगर मैं बोलूँ एक्स वाई जेड है, तो कितना कॉलम होगा यहाँ पे, या कितना कोफिशियंट आएगा? बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स, ठीक है, बी टू एक्स स्क्वेयर समथिंग ऐसा आएगा। अगर चार कॉलम है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो कितना आएगा? बी थ्री करके कोई वेरिएबल आ जाएगा, एक्स थ्री सपोज। ठीक है, तो इस टाइप में कैलकुलेट होता है। और जो बी वन बी टू बी थ्री कैसे कैलकुलेट होगा? ऑल विल गोइंग टू कैलकुलेट बाय दिस ओनली, मतलब को वेरियंस ऑफ ईच वैल्यू ऑफ एक्स विथ ईच वैल्यू ऑफ वाई। अगर नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा है तो यहाँ पे तुम ज़्यादा वेरिएबल को लोगे। ठीक है, सिमिलरली डिवाइड बाय वेरिएंस will going to give you coefficient, and b naught will be considered as a constant which is defined by mean of y minus b1 into mean of x। तो mean of y कॉलम माइनस b1, जो कोफिशिएंट आपका b1 से मिल रहा है उसको आप दोगे। ठीक है, इट्स अ मैथमेटिक्स। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो मैं और इजी वे में समझाऊंगा, लाइक, ओके, बट try to understand the formula. This is very easy. If you know this formula, if you know this, you can easily understand. So focus on this formula. As I said, you data science is completely a machine learning. So you need to be aware about this formula. Okay, and if it is not clear, you can take references also from the Google how we can code it, and then you can do it. Right now we are just taking a two variable because I don't want to make it complex, so मैंने सिर्फ दो वेरिएबल में आपको दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसी ऑपरेशन को यहाँ पे हमने परफॉर्म किया है इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, एंड देन आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑन माय होल डेटा सेट डीएफ। मतलब डेटा फ्रेम के ईच एंड एवरी कॉलम और ईच एंड एवरी वैल्यू पे मैं कोफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा। वंस आई फाइंड आउट द कोफिशिएंट, आई विल डू द प्रिडिक्शन। ओके, सो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने एक लिस्ट लिया है यहाँ पे, प्रिडिक्शन इज इक्वल टू एम टी, बी नॉट एंड बी वन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑन माई ट्रेन डेटा, मतलब बी नॉट और बी वन वेरिएबल को
coefficient of this train data will be going to assign. Then I will going to write a for loop for I row in test df dot iterative row. मतलब मैं अपने डेटा सेट को टेस्ट डेटा सेट पे iteratively I will going to calculate this b0 and b1 for each value. ठीक है, आई एन रो किस लिए यूज हुआ है कि मैं अपने टेस्ट डेटा सेट, जो कि मेरा टेस्ट डेटा सेट कितना था 46 एंड 17 था, ठीक है, 46 मेरा ट्रेनिंग डेटा था, 17 मेरा टेस्ट डेटा था, राइट। तो 17 डेटा पे मैं कैलकुलेट करूंगा और प्रिडिक्शन में अपेंड कर दूंगा, मतलब जो भी प्रिडिक्शन मेरा होगा उसको मैं यहाँ पे अपेंड कर दूंगा। तो इसने फाइंड आउट किया ये सब वैल्यू, मतलब जो एक्स वैल्यू है, मतलब जो 52 25 49 इसका प्रिडिक्शन है, किसका, आपका, इसका एक्स अगर 108 है तो उसका प्रिडिक्शन 52 आ रहा है, बट इसमें 392 किया है, राइट। तो इस टाइप पे प्रिडिक्शन हुआ है, तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि कितना एक्यूरेट है। इज इट क्लियर? अभी आप उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको ग्राफ के फॉर्म में कर सकते हो, तब जैसे मैंने ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया। तो अभी ये जो ये रेड कलर की लाइन है, ये आपकी बेस्ट फिट लाइन है, मतलब ये और क्या होगा, मतलब ये आपका प्रिडिक्टेड डेटा है, ठीक है। मतलब जो प्रिडिक्शन हुआ है एल्गोरिदम का, और ये जो स्कैटर वाला क्या है, एक्चुअल डेटा है जो आपके वाई कॉलम में है। तो ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट भी किया है, एक्चुअल डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा। समझ में आया? ये जो रेड कलर वाला है वो Yes, sir. आपके एल्गोरिदम में प्रिडिक्ट किया है, और ब्लू वाला जो है वो एक्चुअल वाई कॉलम का डेटा है। तो देखो कितना वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें इम्प्रूव करना होता है फर्दर टेक्निक से, बट वी विल नॉट गो इन अ डीप। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू आइडिया लाइक हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क। व्हेन यू विल गोइंग टू रन ऑन योर सिस्टम, आप इस कोड को रन करो, ठीक है। रन करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम आएगा शायद इधर से, ये वाले पार्ट से, ठीक है। तो आपको बस इसको फंक्शन को रीड करो, मतलब इसको व्हेन यू आर गोइंग टू रीड इट यू विल अंडरस्टैंड। ए बी लिस्ट डेटा मतलब क्या होगा, डेटा आप जो रीड करोगे यूजर से उसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट यू विल असाइन टू ए एंड बी। उसके बाद एक्स और वाई को आप ए और बी लिस्ट है उससे एक एक डेटा को पिक करोगे वैल्यू को, और एक्स और वाई को असाइन करोगे। उसके बाद आप उसमें मीन फाइंड आउट करोगे, और B1 और B0 कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करोगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मीन वाई, मीन वाई डिवाइड बाय वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में आप इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से दिस वर्क इट विल गोइंग टू वर्क। इज इट क्लियर टू यू लीनियर रिग्रेशन हाउ इट वर्क्स? सो लीनियर रिग्रेशन में इट विल गोइंग टू, एक्चुअल लीनियर रिग्रेशन क्यों यूज होता है, इट इज सिंपली यूज टू फाइंड रिलेशन बिटवीन योर एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। मतलब आपके इंडिपेंडेंट फीचर और डिपेंडेंट फीचर, मतलब जो आपको प्रिडिक्ट करना है और जिसके थ्रू प्रिडिक्ट करना है उसके बीच रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आप लीनियर रिग्रेशन यूज करते हो। एंड व्हाट यू डू इट देयर, you just try to find out this best fit line. This is called best fit line. So this best fit line will give you idea कि कितना prediction accurate है आपका। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Yes, sir. एनी क्वेश्चन दैट यू वांटेड टू आस्क? No, sir. ओके, so we're going to see one more logistic regression. ये this logistic regression is based on Titanic dataset. And what is our target column here? Our we need to predict whether the person is survive or he death, ठीक है। So survive means he is one and death means zero. So जो logistic regression, why do we use, if you remember I told you in the beginning of the class that logistic regression is used for categorical variable, means for classification of binary classification, multi classification, and linear regression work with the continuous data. Continuous data means where your target variable is
कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन कब यूज होता है? जब तुम्हारा टारगेट वेरिएबल कंटिन्यूअस हो, डेसिमल के फॉर्म में हो। ठीक है। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज इन विच केस? व्हेन यू हैव अ कैटेगरिकल वेरिएबल, मींस तुम्हारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगरिकल हो। जस्ट लाइक हियर 1 and 0 है, मतलब 1 मतलब सर्वाइव होगा। टाइटैनिक डेटा सेट क्या है? हैव यू एवर वर्क ऑन दिस टाइटैनिक डेटा सेट? No, sir. सो टाइटैनिक डेटा सेट, हैव यू सीन द मूवी टाइटैनिक मूवी? Yes, sir. ओके, so in that Titanic movie में, based on this data set, like whether the patient will sorry passenger will survived or not, so based on that they have created it. This is a Kaggle data set. एक Kaggle एक वेबसाइट है जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड challenges कराती है। Challenges means they give you a problem domain. If you are able to solve it, you can get a reward for that, means money prize they give you. And so every people they try their luck there. They solve this different data set, and this data set created by Kaggle only to post it on a challenge. So we did here same thing. We read in the all the library we imported at the start. Then we read this Titanic dataset file. Once we are did this, we were running Sir, this what file. is Yeah, sir, what is Seaborn? Seaborn is the same data visualization. uh, I think I told you in the last class, मैटप्लॉटलिब जैसे होता है ना, वैसे एक सीबॉन होता है जो कि it is used for drawing more deep graph, maybe 3D view, 3D ग्राफ और ये सब को फॉर्म करने के लिए सीबॉन यूज होता है, like mathematical 3D graph. So you can see in a more depth inside that. So seaborn is one more library, and you can use that library also. Let me show you a seaborn document. Okay, sorry, it is not the free one. Yeah, this is. सो ये देखो ग्राफ, जो हम स्टैटिस्टिकल ग्राफ फॉर्म करने के लिए हम लोग सीबॉन का यूज करते हैं। सो इट विल गिव यू मोर आइडिया, इट इज लाइक इन मोर डेप्थ। इट इज नॉट मीन्स इन मैटप्लॉटलिब वी ड्रॉ पाई चार्ट, बार चार्ट, histogram, right? But this is something different, different kind of graph you can form with the help of this in more detail, right? So it is another kind of data visualization, and it is more advanced and based on more statistical as compared to matplotlib. So this link I'm sharing with you here in this tutorial are there. If you are interested, you can just have a look on this. It's similar to the matplotlib, not much difficult. It has a similar syntax. ठीक है, तो हम लोग टाइटैनिक डेटा सेट को एक बार रन करते हैं। सो व्हेन वी विल गोइंग टू रन दिस, you can see this the data set will be like this, right? Passenger ID survived. So हमारा टारगेट कॉलम क्या है यहाँ पे? सर्वाइव्ड। इसमें 0 1 है। 1 मीन्स दैट पेशेंट इज सर्वाइव, सॉरी दैट पैसेंजर, मतलब वो पैसेंजर बच गया, ही इज अलाइव। एंड दोज हु 0 मीन्स दैट पैसेंजर इज डेथ। सो हमारा यहाँ पे इनपुट कॉलम क्या होगा? पैसेंजर आईडी, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, व्हाट इज नेम, वेदर इज मेल फीमेल, व्हाट इज एज। तो हम ईच एंड एवरी कॉलम को पिक करके फाइंड आउट करेंगे कि उससे रेलिवेंट डेटा, मतलब अगर पर्सन की एज इतनी है और उसकी इतना इतनी ये सब फीचर है, तो वो बचेगा कि नहीं, राइट? तो ये हमारा प्रॉब्लम डोमेन है। तो इसमें हमने ये भी फाइंड आउट किया कि कितने परसेंटेज मेल, मीन्स एडल्ट, सीनियर और किड के अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कितने बच्चे, कितने लोग बचे उसमें, कितने लोग की डेथ हुई। सिमिलरली हमने वो भी फाइंड आउट किया कि मीन्स कितने जेंडर वाइज, कि अगर मेल है तो कितने लोग बचे हैं उसमें, कितने लोग की डेथ हुई है। इवन इन द एज वाइज ऑल्सो वी डिड इट। आई विल गोइंग टू शो यू एवरीथिंग हियर। तो अभी हम लोग फर्स्ट फर्स्ट क्या करेंगे, ये देखो हीट मैप। हीट मैप एक ग्राफ है जो कि एसएनएस लाइब्रेरी से आप फॉर्म कर सकते हो। हीट मैप में इट विल जस्ट शो यू
द डेटा। ओके, अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें क्या है, ये जो पील दैट्स येलो कलर दैट यू आर लुकिंग ना, इट मीन दैट इन दिस कैबिन कॉलम दिस येलो कलर नल वैल्यूज आर देयर, इस होल डेटा सेट। और अदर कॉलम में नल वैल्यू नहीं है, बट जो एज कॉलम है, इसमें जो येलो कलर से प्रेजेंट है ना, इट मीन्स दैट दीज आर द नल वैल्यू, रेस्ट आर completely violet because they don't have null value. Okay, so if you want to find it out in the form of graph, how you can do that? With the help of heat map you can do it. Are you getting? Yes, sir. सो दिस हीट मैप, तो ये जो येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर एज कॉलम में इस जिस जगह पर वैल्यूज आर मिसिंग। और ये जो कैबिन कॉलम है उसको तो बात ही अलग है, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 95% से ऊपर ही नल वैल्यूज है। बट रेस्ट कॉलम में, एम्बार्क में ओनली एक एक या 2% कुछ वैल्यूज नल होगी, बट रेस्ट कॉलम आर कम्प्लीटली वायलेट, इट मीन दैट दे आर हैविंग वैल्यूज। तो ये आप ग्राफ के फॉर्म में यू कैन फाइंड इट आउट। Now here what you are finding out, how many survived means survived column में 0 और 1 को आप काउंट कर रहे हो। 0 मतलब क्या है, जिनकी डेथ हो चुकी है। 1 मतलब क्या है, जो कि बच गए हैं, सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड क्या है आपका, टारगेट कॉलम है। उस टारगेट कॉलम में आप काउंट कर रहे हो कितने लोग की डेथ हो गई है, मीन्स 0 मीन्स दोज हु डेड डायड एंड 1 मीन्स दोज आर स्टिल अलाइव। नाउ बेस्ड ऑन द जेंडर, अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, कैसे फाइंड आउट करोगे? एस एन एस सेट स्टाइल वाइट ग्रिड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ बार यू वांट। एस एन एस काउंट प्लॉट, मतलब इसमें आपको काउंट काउंट वाला फंक्शन अप्लाई करना है प्लॉटिंग में। कौन सा कॉलम आपको चाहिए? सर्वाइव्ड कॉलम में। ह्यू मतलब उस सर्वाइव कॉलम में आपको और ड्रिल किया गया है, मतलब क्या हुआ है, सर्वाइव कॉलम में मुझे जेंडर वाइज चाहिए, तो मोर ड्रिलिंग हुआ है यहाँ पे। मतलब आप समझ सकते हो कि अब मैं सर्वाइव कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ कि मुझे जेंडर वाइज फाइंड आउट करना है कितने लोग बचे, कितने लोग की डेथ हुई है। ठीक है, और कौन सा डेटा ले रहा हूँ? डेटा इज इक्वल टू ट्रेन, मतलब ये जो ट्रेन वेरिएबल है, इसमें मैंने डेटा रीड किया है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जो ट्रेन डेटा है इसमें मैंने टाइटैनिक डेटा सेट को रीड किया है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे डेटा में ट्रेन वेरिएबल पास किया है। ठीक है, और पैलेट मतलब मैंने, ये कलर है, पैलेट मतलब किस टाइप में तुम डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो। तो ये थोड़ा सा, अगर कंफ्यूज होते हो तो ये पैरामीटर देख सकते हो। यू कैन सी दिस, सॉरी, ये तो इसका हो गया। यू कैन सर्च फॉर दिस काउंटर प्लॉट फंक्शन in a Google SNS bar, and you can check it like what are the parameter it is accepting. So based on that you can make a changes. अब तो इसमें ये क्या बता रहा है कि सर्वाइव कॉलम में ऑलमोस्ट ये जो 550 लोगों की डेथ हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे इसका अगर पॉइंट देखोगे तो समथिंग 350 के अराउंड लोग अभी जीवित है। अभी जब मैंने एक्स्ट्रा पार्टीशन लगाया, मतलब एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इसमें ये बता रहा है 550 लोगों की ऑब्वियसली डेथ हो चुकी, उसमें से अम, कितने फीमेल है आपके? ऑलमोस्ट 90 के अराउंड। ठीक है, समथिंग 90 के अराउंड आपकी फीमेल थी। और जो लोग बचे उसमें कितने लोग, मतलब जो लोग बचे उनकी काउंट कितनी है, लगभग 120 सपोज। तो उसमें फीमेल की काउंट कितनी है? तो फीमेल ये परसेंटेज में है, इट्स नॉट इन दैट, इट माइट बी अ क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड कि जो लोग, ओके, तो ये जो है इसमें एक्चुअली मेल एंड फीमेल में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें ये जो मेल है इसमें डेथ वालों में, वो उनकी काउंट इतनी है, और फीमेल की काउंट इतनी है। जो लोग जीवित है उसमें फीमेल की काउंट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 200 के ऊपर। तो मे बी ऐसा होता है, राइट? बिकॉज वेन एवर एनी डिजास्टर हैपन, दिस the relief camp and all, they first save to the woman and kid first, because obviously, you know, right, you might have seen now also, like in UP, Bihar, and some other state, there are a lot of flood is happening. So this relief camp military people, they are first saving women and kid because they feel difficulty to save, then they save you like a male, right? So
ऐसा हो सकता है कि like maybe there is a chances that because of this situation, because of this case, lot of female they got saved, and because the men they get died because they are trying to save a kid and like a female, right? तो ऐसा visualization आप कर सकते हो, and you can do in various form p classes. एक p class मतलब just like a passenger class, whether it is economic class, business class in a flight, or sleeper class, general, ac tier, ac second tier, third tier. तो इस form में you can draw the graph. Are you getting right? This is an option, you can Yes, ignore sir. this. This is the again shall I leave this data visualization part? Will you able to handle it? Means will you able to understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then the actual part is started here. Here I'm trying to write a function that will going to take data age and p class, and they are checking if this age is p class is equal to 1, and means it is first checking that is the age is equal to null. pd dot is null age matlab we are first will going to pass an age, it will going to check the age, and based on that it will classify. So this function they are actually checking the person who are in higher class tend to be an older. Matlab, you can think it like suppose in the train also, suppose there is one separate box for the senior citizen, one box for the ladies department or ladies bogie, we say it right. So you can think it based on that this function is written. Who is having p class 1, their age might be in the range of this. p class 2 there might be having range in this, and otherwise the other people are the kid or their age is teenager or less than 24, right? So ये एक function है this that will going to classify that p class based on their age. After that the next thing that we are trying to do it here, we are just uh, applying a function on the age column. Means we are going to apply operation on age and p class operation, and the value will going to assign to this age. Okay, so based on the age we can help those who are more senior, right? So because of this we have applied this function to it, and then once we are doing this, you can see अब हमारे पास कोई भी null value नहीं है except cabin. Earlier it was there in the other column also null values. In which column? 1 minute, let me check it. या एज कॉलम, राइट? सो अभी एज कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है हमारे पास, राइट? बिकॉज वी हैव classify we have made changes to the age column. What changes we made? That whoever is having more age, we will give some preference to them while saving, right? And we drop this column. अभी मैंने केबिन कॉलम को ड्रॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी नल वैल्यू है. अभी जैसे ड्रॉप करने के बाद मैं डेटा देखूंगा तो इसमें देखो कि cabin column कहीं भी नहीं दिखेगा, right? So you can drop it also with this drop function. Then you can find it out the information of your data set, like which is your categorical column, how many rows you have. So once if you do this dot info, it will going to show you null value, missing value, data type together. Once you are done with this, now there is two more column that are very this may sex, right? So this is you can this is a categorical, right? So you can convert it into 1 and 0 also. So with this get dummy function किस लिए use होता है? Get dummy function will going to convert your categorical column in the form of numeric, that is 0 and 1. So you can think it like 0 is for female and 1 is for male. And why do we do that? So that your algorithm can learn more easily. Is it clear? Get dummy function, why do we use? To convert column into categorical, to convert categorical column into numeric value, so that algorithm they can learn more easily. So that's why we use this get dummy function, and we are picking a column, this train dataset sex column or embark column, right? And once we are done with this,
we will going to drop this column from our data set, and then once we will going to drop it, we will going to combine it into a single column and add it into our data set. For example, uh, I talk about that you can see here sex, embark, name, ticket, all this thing I have dropped down. Why I dropped down? Because they are not much necessary, right? I just convert this. So once I drop out, I will going to concatenate all this value into one single column and I will add it. Okay, once I done with this is the final operation. ये जो मैं कह रहा था, right, कि how you are going to do the train test split. तो यहाँ पे मैंने टेस्ट साइज दिया 30%, मतलब मेरा ट्रेन डेटा कितना होगा 70%. And I will going to drop the survive column because survive column is my target column. Once then I will going to import logistic regression algorithm. I will going to make fit on my training data, test data, and I will going to do the prediction. Is it clear to you now? Yes, sir. और अब बाद में आप लोग इसको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करके एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हो. मतलब कि 81%, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 81% एक्यूरेसी है कि वो the he will going to be like 82% is the overall accuracy of saving or death to find out on your data set. So this is the complete thing. I know many of things is not clear to you, but this is a beginning. You just go through it once, run your code, you will easily understand the flow. Otherwise, obviously I will explain you in the next session. So this both the file is already there on the data engineering zip folder in a GitHub. Download it, practice this, and let Yes, me sir, know. I have it. Yeah, if you have any question on this. Do you have any question right now? No, sir. तो आप इसको रन करो आज. नेक्स्ट सेशन में मैं न्यू एल्गोरिदम पढ़ाऊंगा. और डोंट वरी, ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता इसमें, जस्ट रन दिस लाइन बाय लाइन. Google it, what actually the function is, what this heat map is, then you will get an idea. Or even if you not do it Google, just note down that particular line, send me on the Trello that this line or this screenshot is I'm having doubt. I will reply on that. Okay, sir. Okay, just 1 minute. I just reshare once again. I I have you might be have, I know, but let me yeah, it's already been shared. Yes, sir, I have it. Yeah, so you just practice this and let me know in the next session. So in the next session, I will start another algorithm, and next week means today's 10, right? So from 17 onward, we will going to start your MySQL part. Okay, sir. Thank you very much. Yeah. Okay then. Okay. Yeah. Bye. Thank you, sir. Yeah. Welcome.